بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آپ نے جگہ جگہ ایک چیز پڑھی ہوگی، زندگی بہت عزیز ہے، اس کی حفاظت کریں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، زندگی بہت عزیز ہے۔ مختلف فکروں میں، مختلف شکلوں میں اس زندگی کے تحفظ اور حفاظت کا اعلان پڑھا ہوگا، اور جو یہ اعلان ہے بالکل ٹھیک ہے، 100% ایسے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ زندگی اللہ جل شانہ نے ہمیں امانت دی ہے، اس لیے جو بیمار ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کرے، جتنا اس کے لیے ممکن ہو، قیامت کے دن اس سے پوچھو گے، ہم نے اپنی مشین دی تھی تجھے، اور اس لیے دی تھی کہ تو اس کو صحیح رکھ، تدبیر میں بھی، پرہیز میں بھی، علاج میں بھی، احتیاط میں بھی، تو اس کو ٹھیک رکھ، تو نے ٹھیک کیوں نہیں رکھا تھا؟ یہاں تک فرمایا کہ جو معالج، جو علاج معالجے کرنے والا حکیم یا ڈاکٹر بن سیکھے اگر علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو مواخذہ دینا ہوگا، اور اگر سیکھے ہوئے علاج معالجہ کرتا ہے اور بندہ نہیں بچتا، اس کی موت آئی ہوئی ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ کے ہاں کوئی جواب نہیں دینا ہوگا۔ تو زندگی عزیز ہے، اس زندگی کو عزیز اور اس کا تحفظ کیسے؟ اس کا تحفظ دو چیزوں سے ہے، ایک فرشی نظام سے، ایک عرشی نظام سے، اور ہم نے دونوں طرح سے کرنا ہے۔ فرشی نظام کا تحفظ سیکھا، سگنل دیکھو، گاڑی کی احتیاط کرو، ٹرن کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے شیشے لگائے ہیں، سامنے والا شیشہ، دائیں بائیں والا شیشہ، احتیاط کر کے چلو۔ اس طرح یہ کھایا ہے، یہ نہیں کھایا، کھانے کے اوپر کھانا بہت زیادہ یا احتیاط، یہ سارے فرشی نظام ہے اور یہ ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک عرشی نظام بھی ہے، کچھ دشمن ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جادو ایک ایسا دشمن ہے، وہ نظر نہیں آتا، جادو نظر نہیں آتا، اس کا وار نظر نہیں آتا، خود کرنے والا نظر نہیں آتا، اور جادو ہو جاتا ہے۔ جنات ایک ایسے دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، ان کا وار ہوتا ہے اور وہ خود سامنے موجود ہوتے ہیں، بالکل جنات سامنے موجود ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خفیہ دشمن ہیں، جیسے جراثیم ہیں پر نظر آتے ہیں کیا؟ ہیں، سائنس کہتی ہے ہمارے خفیہ دشمن ہیں۔ جس طرح جراثیم خوردبین سے، مائکروسکوپ خوردبین سے نظر آتے ہیں، اور یعنی معلوم ہوا اس آنکھ سے نظر نہیں آتے، ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس کو میں خوردبین کہہ رہا ہوں، ٹھیک؟ ایک اور سائنسی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جنات، جادو اور ان کا فساد اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک اور انسانی آنکھ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، اس سے نظر آتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں، اللہ سے دل کی آنکھیں مانگا کریں۔ یا اللہ چہرے کی آنکھیں تو نے دی ہیں، مولا دل کی آنکھیں بھی کھول دے۔ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر زندگی کا مزہ اور ہوتا ہے، پھر زندگی کا لطف اور ہوتا ہے، پھر نماز میں اللہ اکبر کہنے سے جو دل کی آنکھیں کھلے بندے کو نماز میں قدرت کے جلوے اور کرشمے نظر آتے ہیں، وہ چہرے کی آنکھوں والوں کو نظر نہیں آتے۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے جلوے، جو اعمال کرتے ہوئے اعمال کی قدرت، جو گناہ کرتے ہوئے اس کی ظلمت اور نحوست، جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کو نظر آتی ہیں۔ چہرے کی آنکھیں کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ چہرے کی آنکھیں تو اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، چہرے کی آنکھیں اور زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی۔ ایک حال ہے اور اگلا پچھلا حال ہے، اور پچھلے حال میں کون بیٹھا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ چہرے کی آنکھوں کی نظر محدود، دل کی آنکھوں کی نظر وسیع۔ چہرے کی آنکھیں سکڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، اور دل کی آنکھ جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ طاقتور ہوتی جاتی ہے۔
उतनी ताकतवर। तो एक फर्शी निजाम है एहतियात का, एक अर्शी निजाम है। अब ये जो अनदेखे दुश्मन है, इनसे कैसे बचे? देखे दुश्मन के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी रखी, ऐसी जिसमें बम असर न करे, गोली असर न करे। देखे दुश्मन के लिए बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ दीवारें बनाई, जिस पे बम गोली असर न करे। और जहर का देखा, कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिला हुआ, उसको बकायदा चेक करने के आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी हैं। ये देखे दुश्मन है सारे, साथ हथियार रखा, गन रखी, कोई देखा दुश्मन मेरी तरफ रुजू ना करे। अनदेखे दुश्मनों का आपने क्या किया? जिंदगी तो बड़ी अजीज है, इसका तहफ्फुज करना है। ये नहीं है कि मर तो वैसे जाना है, इस जिंदगी को ख्वार करते रहना है। नहीं नहीं, वो उसकी अमानत है, वो तुझसे वापस ले ले, चाहे तू बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हो, वो उसकी अमानत है, उसको तंदुरुस्त फिट वापस देना है। लेकिन ये जो अनदेखे दुश्मन है, इनका क्या करेंगे? कभी सोचा ही नहीं। और ये अनदेखे दुश्मन हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हैरत अंगेज नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अनदेखे कई, मेरे यहां तस्बीह खाने में बैठे हैं आप हजरात, कईयों को अनदेखे दुश्मनों ने नुकसान पहुंचा दिया होगा। किस वक्त? जिस वक्त खाने बैठे होंगे, उनके खाने के दौरान में अगर उन्होंने अमल नहीं किए, अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो दुश्मन अनदेखे साथ बैठ के खाएं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमारे साथ बैठ के कुत्ता खाए, और कुत्ता अपना गंदा लुआब भी अंदर डालता जाए, और आप भी साथ खा रहे हैं, वो भी खा लें, तो फिर वो सेहत बनेगी या बीमारी बनेगी? इन अनदेखे दुश्मनों से बचने की बुलेट प्रूफ जिंदगी और है। गने, हथियार, असलहा, तलवारें, बड़ी दीवारें, ये अनदेखे दुश्मन इन चीजों को नहीं मानते। उसके सामने तलवार की कोई हैसियत नहीं, गन की कोई हैसियत नहीं, बड़ी दीवार की कोई हैसियत नहीं, किला बंद हो जा कोई हैसियत नहीं, जेरे जमीन तो बना ले कोई हैसियत नहीं। बिन देखी जो ताकतें हैं, बिन देखी जो कुव्वतें हैं। और अब आपको दिलचस्प बात बताऊं, बिन देखी ताकतों के लिए बिन देखे निजाम ही लाने पड़ेंगे। आग का जवाब आग देगा, लोहा लोहे को काटेगा। समझ आई मेरी बात की? सो गए सारे हैं? बिन देखी ताकतों के लिए बिन देखा निजाम साथ लेना होगा। वो बिन देखा निजाम मसनून दुआओं का है, मसनून अमाल का है, और वो अर्श से आया है। क्यों? ये बिन देखी ताकतों के लिए ही ये निजाम है सारा। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारा घर उजाड़ने, तुम्हारी दिलों में नफरत डालने, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे अवारिजात, इनके लिए बिन देखी ताकत को साथ लेना होगा। और वो बिन देखी ताकत रब है, रब। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलेंगे, बिन देखे वार हमसे खता भी होंगे, जुदा भी होंगे, और उन्हीं पे वापस पलट जाएंगे। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलने वाला किसी मैदान में नाकाम नहीं होता। बिन देखी ताकत को साथ लेके चलने वाला हर मैदान में फतह और कामयाबी पाता है। बिन देखी जिंदगी को लेके चलने वाला हर वक्त रोशन और चमकदार होता है। और जो सिर्फ देखी जिंदगी से अपने निजाम की हिफाजत करता है, चाहे वो दुनिया के किसी मजहब का फर्द हो, उसे बिन देखे निजाम के लिए आखिरकार कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। ये जो अफहसिब्तुम वाली आयत है ना, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, अल्लाह के हबीब तशरीफ ले जा रहे हैं। एक सहाबी ने एक मरीज देखा, चुपके से दिल पे एक आयत पढ़ी, और आयत पढ़ के उसके कान में फूंक मार दी, और यूं उठ के बैठ गया। हुजूर ने फरमाया, मफहूम है, क्या पढ़ा? आका, ये आयत पढ़ दी। तो हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई शख्स इसको यकीन से, बस ये शर्त है सिर्फ। क्या शर्त है? क्या शर्त है? यकीन शर्त है। यकीन से पढ़े
पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, चलो जी बस बात खत्म हो गई। पहाड़, जादू पहाड़ से ताकतवर नहीं है, जिन्नात पहाड़ से ताकतवर नहीं है। अल्लाह ने पहाड़ को ताकत दी है, कुदरत दी है। पहाड़ भी अपनी जगह हट जाए, छोड़ दे। ये वो आयत है। इस आयत में बिन देखी ताकत, बिन देखे दुश्मन और बिन देखे वारों का हल है। क्यों? इस आयत के साथ अल्लाह जल्ल शानहू की बिन देखी ताकत है, बिन देखी कुदरत है और बिन देखे वार हैं जो उन पे होते हैं। और जाल हक वज़हकल बातिल, और फिर हक जब आता है बातिल जो है धुआं बन के मकड़ी के जाली की तरह खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, बिन देखी ताकत का एक बिन देखा तोहफा है। मेरा रब बिन देखा, मेरा रब बिन देखा। आशिक इस पे यकीन लाते हैं बिन देखे रब पे। बिन देखे रब की तरफ से मेरे मदीने वाले ने एक दुआ फरमाई, क्या? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, तवक्कलतु अलल्लाह। तस्बीह खाने से ले लो। ये गर्मियां तो हर जगह मिल जाएंगी, हब्स तो हर जगह मिलेगी, पर तस्बीह खाने का ये फैज हर जगह नहीं मिलेगा। ये चंद देर की, चंद लम्हों की हल्की सी घबराहट है, लेकिन हमेशा की राहत है। थोड़े वक्त की हल्की सी घबराहट, लेकिन हमेशा की राहत। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, क्या दुआ है। एक दुर्वेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब मामू कांजन के रहमतुल्लाह अलैह। वो पैदल चल रहे थे। उनके साथ वाले चलने वाले थक गए, तो किसी ने पूछा, हजरत आप बुजुर्ग बाबा जी हैं 70 साल से ऊपर की, आप फरमाया मैंने ये दुआ पढ़ी है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, मैंने ये दुआ पढ़ी है। आज के गैर महफूज दौर में जब इंसान की दौलत महफूज न हो, रिस्क महफूज न हो, इज्जत महफूज न हो, चाहे वो दुनिया का कोई मुल्क हो, इस मुल्क की बात न करो, दुनिया का कोई मुल्क हो, दुनिया का कोई मुहज्जब मुल्क हो, जहां कहते हैं 100% तालीम है, जहां कहते हैं 100% तहजीब है, जहां कहते हैं 100% निजाम है, कोई दुनिया का तहफ़्फ़ुज़ भरा मुल्क ना हो, वहां ये अनदेखी कुव्वतों का साथ जरूरी है और जरूरी है। हाँ, एक साहब ने मुझे एक बात बताई, उन्होंने ये बात मुझे रमजान गुजारते हुए बताई। रमजान गुजारने वो आए थे यहां। कहने लगे, साल हर साल मेरी जिंदगी के ऐसे गुजरे कि मैंने चोरी का माल बेचा। लोग छीना झपटी करते थे, जुमा, हफ्ता और एतवार, ये 3 दिन होते हैं, पर्स, मोबाइल, लोगों की चीजें छीनते थे। फिर एक अड्डा था, वहां जाके बेचते थे। वहां से माल मैं लेता था चोरी शुदा, और मुझे इल्म था, और वो चोरी शुदा माल मैं आगे बेचता था। लेकिन जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली उस वक्त आई जब मैं तस्बीह खाने से दर्स की तरफ मुतवज्जह हुआ, और वो किसी दूसरे मुल्क में रहते थे। वहां से उन्होंने मुझे बात यहां आके बताई, और फिर अल्लाह पाक ने दिल बदल दिया, दिमाग बदल दिया, जज्बे बदल दिए, सोचें बदल दी, और अपनी जिंदगी का अमल और किबला बदल दिया। कोई बिन देखी साथ ताकत आई है जिसने दिल बदला है। तो अगर गैबी निजाम को साथ लेना है और बिन देखी गैबी ताकतों के वारों से बचना है, तो गैबी अर्शी निजाम साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो मसनून दुआएं हैं, आपने महसूस नहीं किया? बड़े बड़े मालदार लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग,
और जिनके पास दौलतें और हिफाजत का सारा एहतियात का निजाम है, उनके पास भी कोई इस्म होता है हिफाजत का, वो भी तस्बीहां पढ़ते हैं। वो सारी दुनिया में चाहे जितने लिबरल बन जाएं, लेकिन अंदर से उतने वो सूफी जरूर होते हैं। ये पक्की बात है। मेरे पास आते हैं वो लोग और बहुत ज्यादा आए हैं और आते हैं। जब उनका अंदर खोलते हैं तो अंदर से उन्हें उनके अंदर से एक जागता रब नजर आता है और उन्हें एहसास होता है रब के बगैर जिंदगी नहीं है। मैं जितनी दुनिया की गलतियां वो कहते हैं मैं कर लूं, अगर फिर भी मुझे बचाएगा तो अल्लाह। अपनी जिंदगी की हिफाजत करें। ये जिंदगी अल्लाह ने दी है। ये कोई जिंदगी है कि एक बीमारी से निकले, दूसरे दुख से निकले, तीसरे दुख से निकले, चौथे एक मसला हल नहीं हुआ, दूसरा आन पड़ा, तीसरा हल नहीं हुआ, चौथा जिंदगी का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ता हूं, राहें खत्म हो जाती हैं, रास्ते कट जाते हैं, टकराव पैदा हो जाता है। ये जिंदगी नहीं है। हाँ, तकदीर में अल्लाह ने कुछ मसाइल लिखे हैं आखिरत में ऊंचा मकाम देने के लिए, उससे हम लड़ नहीं सकते, लेकिन उसी रब ने हल भी तो दिया है। अगर तकदीर में अल्लाह ने मसाइल दी हैं, फिर किसी पे शिकवा ना करें, चाहे वो पीर हो या फकीर हो, चाहे वो बंदा हो या रब हो। एक तकदीर का निजाम है। अल्लाह पाक बाज इंसानों को वो चीज नहीं देते जो वो मांगते हैं, वो नहीं देते हैं, वो मांगते हैं। और अल्लाह कहते हैं नहीं, तेरी इसमें खैर नहीं है और तुम्हें मैं इस जगह ले जाऊंगा इसलिए कि यहां से मैंने तुझे कुछ जिंदगी की नसीहतें देनी है। फिर बंदा कहता है जी मैंने ट्रांसफर कराया फला शहर के लिए, मशवरा भी किया, वहां मैं सेट ना हो सका, यहां आया तो वो भी खत्म हो चुका था, इसलिए मेरा तस्बीह खाने से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़े अरसे के बाद कुदरत ने कोई मत डाली कि ना तू गलत था, और कुदरत ने उसमें भी तेरे लिए कुछ सामान रखा है। एक ये है कि पूरी तदबीरें अख्तियार की और उसके बाद कुदरत ने कोई निजाम रखा है मेरी तरबियत का, उस पे तो है तस्लीम और रजा। और एक ये है कि मैं अपनी जिंदगी की इन दुआओं से गाफिल हो जाऊं और इस अमाल से गाफिल हो जाऊं और वो चीजें मुझ पे वार करें जो गैबी चीजें हैं, मुझ पे वार करें। क्या वार करें? मैं बैतुल खला गया, टॉयलेट गया, मैं वहां गाफिल हो गया और उन चीजों ने मुझ पे वार किया। क्या वार किया? वरना जब बंदा टॉयलेट जाता है और दुआ नहीं पढ़ता, वहां कुछ ऐसी अनदेखी चीजें मौजूद होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, और ये उस हस्ती ने बताया जिसको नजर आती। हमें अगर दुआ नहीं पढ़ेगा, इसी शर्मगाह से शयातीन खेलते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? ज़ेरे नाफ बीमारियां पैदा होती हैं, अनोखी बीमारियां ज़ेरे नाफ पैदा होती हैं। मर्दों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां, औरतों में क्या ज़ेरे नाफ बीमारियां? एक तो बीमारियां पैदा होती हैं, दूसरा ज़ेरे नाफ फितने पैदा होते हैं। और ज़ेरे नाफ फितने ऐसे पैदा होते हैं कि इंसान गुनाहों में, कबायर में, गलतियों में और ज़हनी खल्फशार में मुब्तला होता है और इंसान बहुत ज्यादा फिर वहशी बन जाता है। और तीसरा जो नुकसान होता है बैतुल खला में, वो ये है कि बैतुल खला में अगर दुआ नहीं पढ़ेंगे, एंग्जाइटी, टेंशन, जिसे दूसरे लफ्जों में जब ये बीमारी बढ़ जाती है तो मैं उसे कहूंगा वसवसों की बीमारी, सोचों की बीमारी। आप नहीं देख रहे हो अंदर के निजाम को, देखने वाले ने बता दिया अंदर एक निजाम है, ख्याल करना, एहतियात से जाना। उन्हें के अंदर जो है ना सांप बैठा है, उन्हें मैं लाठी लेके जाता हूं, एहतियात से टॉर्च भी है, लाठी भी है। मैंने एक साहब को देखा, चावल खा रहे थे दिन के उजाले में, टॉर्च ऐसे करके चावल खा रहे थे, एक अरब था। मैं कहा या करीम ये क्या है? उसमें काली मिर्च ढूंढ रहा था। ओ काली मिर्च में तो खुश हो जाता था, उसको निकाल के एक तरफ करता था, फिर चम्मच से खाता था, फिर टॉर्च ऐसे मारता था, ऐसी सर्च कर रहा था कि कोई काली मिर्च अंदर चली गई तो काम खराब हो जाएगा। हालांकि चावल के साथ जो बंदे चावल खाते हैं और चावल के अंदर का मसाला निकाल के एक तरफ फेंकते हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं। चावल की ये मसाला बहुत जरूरी है, वरना यही चावल तेरे लिए तरह तरह की बीमारियों का जरिया बन जाएगा। ठहरे, इस मौजू को छोड़ दे, फिर मैं इसी पे निकल जाऊंगा।
जैन लगी गली हो तो टोर चली। तो क्या बात कर रहा था? हाँ, ताश ले चल, लाठी ले चल, अंदर सांप बैठा है, वो सांप तो नजर आ रहा, और जो तेरा सांप ऐसा है जो तुझे डसता है और डसने के बाद तेरी सांसों को तंग, तेरी जिंदगी को तंग, तेरी राहों को तंग कर देता है, और जिसको मेरे हबीब ने अपने लफ्जों में फरमाया खुबुस वल खबाइस, खुबुस वल खबाइस, जिन और जिननी। जब माँ बाप जहां मियां बीवी होंगे तो बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे? बच्चे भी होंगे। खुबुस वल खबाइस, ये वो चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं। मेरे पास एक नफ्सियाती डॉक्टर आया, जाग के सुनने वाली बात है, मुझे देख के सुनेंगे तो और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन देखने में आंखें खुली हो, अंदर की पुतली भी खुली हो, ऐसी आंखें होती हैं, ऐसे देखते हैं, नहीं, पूरी आंखें खुली हो। एक साहब को मैं मुसलसल इसरार कर रहा हूं, अब बेचारा आंखें तो खुली होती हैं, अंदर सब कुछ बंद होता है, फिर जाके नहाता है, फिर कहते हैं शायद मेरी आंख खुल जाए। तेरी आंख ऐसे नहीं खुलेगी, गफलत की आंखें बड़े अरसे से बंद है, बड़े अरसे से बंद है, और एहसास नहीं हुआ। अजीब बात है। मैंने एक बहुत बड़ी हस्ती का अभी रमजान में हवाला दिया है, शेख अब्दुल कद्दूस रहमतुल्लाह अलैह, ओ बहुत बड़ी हस्ती है। उनके पास एक बंदा साल से आया, साल से आया, कहने लगा हजरत बड़े आए, काम उनके बन गए, उनको रूहानियत, विलायत, पाकीज़गी, दुनिया के मकासद मनाजिल मिल गए, और मैं इतने अरसे से आ रहा। पर मैं तू तो नहीं आया था हुजूर, मैं इतने अरसे से आ रहा। पर मैं तो सोया हुआ होता है, तू हमारे पास नहीं होता, हमारे पास तो वो होते हैं जो हमारे पास होते हैं, तू सोया हुआ होता है, तो आता है, ऊँघ जाता है, सो जाता है, तो हमारे पास होता ही नहीं है। तो जितना अरसा मजीद आता रहे, जितना अरसा मजीद। आप ऐसे बंदू से तजर्बा कर लें, उनके सामने सियासी गुफ्तगू शुरू कर दें, वो देखें सोते या नहीं सोते, फिर कहेंगे हमें कोई बीमारी नहीं है। ऐसे बंदों के सामने दूसरे मुल्कों के झगड़े शुरू कर दें, गुफ्तगू शुरू कर दें। एक दफा मैंने कहा कि एक बाबा जी थे, वो थोड़ी देर के बाद कहते थे मैं बहरा हूं। मैंने कहा बाबा बहरा नहीं है। मैंने एक जवान को कहा उधर बैठ के बाबे को गालियां दे। गालियां कौन सी? वो गालियां नहीं, बाबा नहीं है कि बाबा ज्यादा खाता है, बाबा हर वक्त सोता रहता है, देखो ना ये बाबे की जिंदगी है, ये उम्र है, इबादत की है। मैंने उसको 2-4 लफ्ज पढ़ा दिए, दूर बैठ के, जहां बाबे की रेंज से दूर निजाम था, और करीब हम कहते थे बाबा जी रोटी खा ली, बाबा कहते थे नहीं मेरी 3 गायें हैं। मैंने कहा बाबा रोटी खा ली है, कह रहा ना मैं दूध से ही निकलता है, तो ही तंग कर देता बाबा। कौन करीब कर कर के ना, फिर बड़ी मुश्किल से काम की बात बाबा समझ जाता। लेकिन सारे ऐसे भी नहीं होते, किसी के बारे में हमें बदगुमानी भी नहीं कर सकते। अच्छा मैंने कहा इसको गालियां दे, और गालियां ये मुहज्जब गालियां, ये वो दूसरी नहीं, दूसरी को तो हम कायल ही नहीं है, माइल भी नहीं है, अल्लाह किसी को ना लाए। मैंने कहा ये कहे बाबा जी खाते रहते हैं, सोते हैं, को ये उम्र है, अल्लाह करने की उम्र है, ये कौन? वहां बैठा था, बाबा उठाया लाठी, बाबे ने कहा ओ तू मेरी बातें कर। मैं कहा बाबा बस आज के बाद कहानी खत्म हो गई, अब हम एक दूसरे के भाई बन गए हैं। मानने लगे तू होता नहीं यहां। तो मैंने एक बंदे को, वो सोता था, कहने लगे जी मुझे तकलीफ है, बीमारी है, मैं सो जाता हूं। फिर कहा ये फकीर दिल की नब्जें भी देखते हैं, और दिल की भी नब्जें होती हैं। मैंने एक बंदे को कहा, मैंने कहा महफिल गरमाओ, इसको बिठा दो, इस बंदे को बिठा दो, महफिल गरमाओ सियासी मौजू का या कोई इस तरह समाजी मौजू, हालात हाजरा वगैरह, इस बंदे को बिठा दो। अगर तो ये बंदा वहां भी सोता है, समझ लो कोई तकलीफ है। अगर वहां नहीं सोता और अल्लाह वाली महफिल में सोता है, समझ लो ऊपर से कोई निजाम इसके लिए उल्टा है। अल्लाह कहता है बस
मैं अगला लफ्ज नहीं कहता। और वहां नहीं सोया, उसने भरपूर वहां डिफेंस किया, इफेंस किया और पता नहीं क्या किया, बातें हैं। वो नहीं सोया बंदा, वो बिल्कुल अलर्ट रहा। मेरी मिन्नत है, मेरी दरखास्त है, अगर ये कैफियत है अल्लाह से मांगो और मांगने के साथ साथ तदबीर करें। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे कभी ऐसे नहीं बैठने देते थे, मुझे अत्तहियात की शक्ल में ऐसे बिठाते थे, ऐसे बैठाते थे। आपको नहीं कह रहा, आप जैसे बैठे हैं ठीक बैठे हैं, ऐसे बैठाते थे। फरमाते थे ऐसे बैठने में ऊंग भी कम आती है, नींद भी कम आती, और जो यूं बैठता है वो ऐसे है जैसे मुआनका नहीं करता, गले लगो आओ। वो मुफ्ती महमूद साहब थे वजीर आला सूबा सरहद के, तो एक खातून ने, कोई किसी मुल्क के ओहदेदार खातून ने आना था। अब उन्होंने हाथ मिलाना था। मौलाना गुलाम गौस हजारवी थे रहमतुल्लाह अलैह, वो एमपीए थे। उन्होंने कहा ठहर जाए, मैं आगे खड़ा हो जाता हूं। और माई हाथ मिलाते मिलाते जब इनकी तरफ आई ना, तो इसने कहा यूं नहीं ऐसे, और माई बस पीछे हट गई, उनको छोड़ के आगे चली गई। यूं नहीं ऐसे, गले लगाओ। सोरे चौक रहे हैं, एक भी नहीं सो रहा। कहते अल्लाह तेरा भला करे, दो चार ऐसी कहानियां और सुना दे। कहां गई नींद, कहां गया खुमार, कहां गया ऊंगना और जमीन को सूंघना, और कहां गई तकलीफ और बीमारी। हजरत मुझे बड़ी तकलीफ है। आते ही मुझे एक बंदे ने पहले दिन कह दिया, भाई ख्याल करना, पहले दिन एक परदेसी ने मुझे पहले दिन कह दिया। मैं समझ गया, मैं कि बंदा कहता है मुझे ख्याल करना, मैंने सोना है, तूने मुझे उठाया, तौहीन अदालत हो जाएगी। उसने आप भी पहले दिन मुझे कह दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तकलीफ है, जरा ऐसी है, मैं सो जाता। मैं हाँ ठीक है जज़ाकल्लाह, मैं थपकी दूंगा इंशाअल्लाह, मैं थपकी दूंगा, आप सो। बिन देखी जिंदगी का निजाम चल रहा, और ऐसे दुश्मन हैं जो हमारी जिंदगी को उधेड़ना चाहते हैं और हमें सुख का सांस नहीं लेने देना चाहते। चाहे वह मियां बीवी के तनाज़ात हो, बच्चों की बगावत हो, घर का रिस्क हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, हमारी बीमारियों के साथ ताल्लुक हो, हमारी नफ्सियाती बीमारियां, हमारी जिस्मानी बीमारियां, हमारी ज़हनी बीमारियां, जिसको साइकी डिजीज कहते हैं। इन सारी बीमारियों के पीछे एक ताकत है। मैं बात कर रहा था एक नफ्सियाती डॉक्टर की, बात याद आई, यही कर रहा था ना। एक नफ्सियाती डॉक्टर मेरे पास आए, नफ्सियाती इलाज में बहुत माहिर थे। अपनी किसी बीमारी के सिलसिले में, अपनी किसी तकलीफ के सिलसिले में मेरे पास आए। मुझसे कहने लगे कि मैं पहले साल ये सब कुछ समझता रहा कि गलत है, दीन सच है, लेकिन हर जगह दीन को उठा के जोड़ देना ये गलत है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, पीरों का, मौलवियों का, जस्ट लाइक ऐसे लोगों का काम है। लेकिन केसों के आने के बाद मैं जब केसों में उलझता गया, हमारे पास वो कहने लगे सिवाय इस चीज के कि नशावर दवाई, नींद वाली दवाई और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वो कहने लगे उसके बाद कुछ केस ऐसे आए, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब हम ये विर्द पढ़ते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। मैं समझता रहा ये भी एक नफ्सियाती है, इनका जहन इस तरफ है। एक ने कहा, दो ने कहा कि मेरी प्रैक्टिस 30 साल से ज्यादा हो गई है। 30 साल के बाद मुझे एक बात समझ आई है, कलाम इलाही का और दुआओं का हमारी नफ्सियाती बीमारी में बहुत दखल है। जहां हम बड़ी बड़ी दवाएं दे के थक जाते हैं, वहां ये कलाम इलाही और मसनून दुआएं और अल्लाह के नाम का बहुत हिस्सा है, बहुत दखल है, और वहां ये जाके इतना ज्यादा हमारे मरीज के लिए डिफेंस करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि हमारा मरीज सेहत में वहां पहुंच जाता है जो साल हर साल हम उसको पहुंचा नहीं सकते, और साल हर साल के इलाज में हम उसका साथ दे नहीं सकते। वहां है, वहां पर जाके मरीज वहां चला जाता है।
ये 30 साल की जिंदगी के बाद 30 साल उस बंदे ने भरपूर इनकार किया, दीन का इनकार नहीं किया, लोगों के अकायद का कि लोग कमजोर हैं, ज़ईफ और अकीदा हैं, वहम को हर चीज बना लेते हैं, उसने इनकार किया। 30 साल के बाद कहने लगा नहीं, मेरी जिंदगी के तजर्बात कहते हैं इनका असर है। मैं कहता हूं सारा असर इन्हीं का है। मसनून अमाल, मसनून दुआओं को अपने साथ लेके चलें। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं, इस्लाम सलामती का मजहब, ईमान अमन का मजहब, मेरे मदीने वाले की मोहब्बत और ईमान कयामत तक की इंसानियत के लिए खैर का और राहत का और रहमत का निजाम है। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूं कि मेरे हबीब मदीने वाले ने हमें कदम कदम पे सलामती का क्या निजाम दिया है, अकल हैरान रह जाती है। अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो, अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो, अब ये मौका है, ये दुआ पढ़ो। घर से निकल रहे हो, कोई दुश्मन हो सकता है, घर से निकल रहे हो, कोई जालिम हो सकता है, घर से निकल रहे हो, कोई दुश्मन रास्ते में कोई चीज नुकसान दे सकती है। अब ये पढ़ लो। सुबह हुई है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ लो। सारा दिन खैर से गुजरेगी, एहतियात से गुजरेगी। खाना खा रहे हो, जहर नहीं बनेगा, बीमारी नहीं बनेगी, तकलीफ नहीं बनेगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये चीजें नहीं बनेगी। खाने से पहले दुआ पढ़ लो, खाने के बाद दुआ पढ़ लो। जो बंदा खाने के बाद 3 बार दुआ, मसनून दुआ के बाद, मसनून दुआ के बाद, बाबे अकरम को उठाओ, उठ गए, अल्लाह अकबर, अपना ना ता करके। बाबा जी जब हमारे पास आए तो जलालतुल आशिकीन थे, बहुत गुस्सा। फिर ये जब इनको गुस्सा आता था, पहले आगे पीछे का दामन बांधते थे, फिर प्याज वाली छुरी उठाते थे। पहले पता नहीं ये दामन क्यों बांधते थे आगे पीछे से, कोई कपड़ा ना अड़ जाए। फिर जब कभी कभी शफकत होती थी, कहते थे हजरत साहब ऐसे गुस्से ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹੁਣ, जिंदगी सारी गुजर गई, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किया हुए, गुस्से को मेहमान किया हुआ। मेरा भी अल्लाह निकाल दे, अब सबका निकाल दे। बोले क्या कह रहा था? जो खाने की दुआ के बाद 3 बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, इसके मैं अक्सर फवायद, फजाइल, बरकत, समरात बताता हूं। 3 बार सूरत कुरैश के, जिनको 3 बार सूरत कुरैश के कमालात की खबर नहीं और वाकई नहीं, वो हाथ उठाएं, और वाकई नहीं वो हाथ उठाएं। हाँ, जो शख्स खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा 1 दफा, अल्लाह पाक उस खाने में अगर जहर मिला हुआ होगा तो असर नहीं होगा, और खाना बीमारी नहीं बनेगा, और खाना सेहत बनेगा, और वो खाना इबादत में लगेगा, गुनाहों में नहीं लगेगा। और जो दूसरी दफा सूरत कुरैश पढ़ेगा खाने के बाद, वो अल्लाह पाक उसको सदा बेहतरीन दस्तरखान देगा, सदा बेहतरीन खाने पे खिलाएगा। यानी रिज़्क में अल्लाह वुसअत देगा तो दस्तरखान बेहतरीन होंगे, या गैब से निजाम भी अल्लाह बना सकता है। और जो तीसरी दफा और आखिरी दफा सूरत कुरैश खाने के बाद पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को गुर्बत, फक्र और तंगदस्ती से बचाएगा। 7 नस्लों को गुर्बत, तंगदस्ती से बचाएगा। ये निजाम है अनोखा। अभी आपने जो तेल लिया है, उस दिन जो तेल के कमालात, इस तेल के कमालात जो हमारे दोस्तों ने बताए हैं, वो नेट पे मौजूद हैं उस दर्श के साथ। अब वो सुने कभी कि ये दम वाला तेल और पानी है क्या, इस पे वो गैबी निजाम पटा हुआ है, और इसके साथ गैबी निजाम टच है, और इसके साथ गैबी निजाम मिला हुआ है, और इसके साथ गैबी तदबीरें शामिल हाल हैं। ये जो तेल है ये ऐसा नहीं है, ये जो पानी ऐसा नहीं है जो अभी आप सबको मिला है। इसको बढ़ाते जाइएगा। अजब चीज है, अजब चीज है। बीमारियों के लिए, घरेलू झगड़ों के लिए, जिंदगी के मसाइल के लिए, तरह तरह के वसवसों के लिए, गुनाहों के लिए। उस दिन एक साहब बताने लगे, मैंने जब से इसको भमों पे लगाना शुरू किया है, मेरी नजरें गलत नहीं देखती, नजरें गलत नहीं देखती।
اور ہمیشہ پہلے نظر سے نظام شروع ہوتا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے یغضون ابصار پہلے آتا ہے وَيَحْفَظُونَ فروج بعد میں آتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بعد میں آتا ہے. آنکھیں پہلے آتی ہیں. اور اس تیل کے اور کمالات ہیں. جسم پہ لگائیں, کانوں کی لو پہ لگائیں, ناک کے اندر باہر کر کے لگائیں, ہلکا سا نتنوں پہ, بھووں پہ لگائیں. جادو کے لیے, جنات کے لیے, لا علاج بیماریوں کے لیے, وسوسوں کے لیے, تکالیف کے لیے, بچوں کے لیے, اپنے لیے, گھر کے لیے. اس کی بنیادی وجہ وہ غیبی نظام, طاقت جس نے غیبی اندیکھی قوتوں اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا تھا, وہ اس میں موجود ہے. اور وہ کون ہے؟ اللہ خود ہے اپنے کلام کے ذریعے. اللہ خود ہے, اللہ خود ہے اپنی کلام کے ذریعے اور اپنے نام کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ان کے سامنے کر دیا اپنے کلام کے ذریعے. اب اللہ ان کے جب سامنے آ گیا, ہم تو تھے کمزور, ٹھیک, بچے کو مارتے تھے محلے والے, بچہ روتا ہوا گھر گیا, قدرتی باپ بیٹھا تھا, بیوی کہنے لگی روز آ کے مارتے ہیں. اور میں کہا چل آج میں ساتھ چلتا ہوں. اس سے پہلے بچہ روتا ہوا آیا اور ناک بہاتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا. جب ہوا باپ ساتھ, اس نے بازو اوپر کیے, مٹھیاں بھینچی, چال میں فرق, انداز میں فرق, اور باہر آ کے چیلنج کرتا ہے, آؤ اب میرا باپ میرے ساتھ ہے, کون مجھے مارے گا. کوئی بچہ ادھر دم دبا کے بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, باپ ساتھ ہے. ہم ہیں کمزور, اور میرے بندو انتم الضعفاء, تم سارے کمزور ہو اور تم سارے ضعیف ہو. انتم الفقراء, اور سارے منگتے ہو, کشکولی ہو, سارے ضعیف ہو, سارے کمزور ہو. مجھے ساتھ لے لو. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رکھ کے بھی جل گئے. اللہ کو ساتھ لے لیا کافرون کی شکل میں, سورۃ الکافرون کی شکل میں پڑھا, ساتھ ہو گیا. اعمال پڑھے, دم کر دیا, میرا رب ساتھ ہو گیا. اس کے اندر ایک طاقت ہے, اس کے اندر ایک تاثیر ہے. ہاں ہوتی ہے, ہوتی ہے. کیا خیال ہے, گالی میں تاثیر ہے؟ مجھے سوئے ہوئے بتائیں, جاگتے ہوئے نہ بتائیں. ابھی اس دن ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ جی مجمع کو صبح ذکر کے بعد سلا دیں, درس نہ ہو, آپ کا درس ظہر کے بعد ہو. میں نے کہا جیسے آپ کہیں میں ویسے کروں گا. پھر میں نے سوچا فجر کے بعد کے جو انوارات ہیں ان کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو بار بار جگانا پڑتا ہے. گالی اثر رکھتی ہے, آگ لگا دیتی ہے, جھگڑے کرا دیتی ہے, دل توڑ دیتی ہے, زندگی بھر کے لیے خاندان جدا کر دیتی ہے. اثر رکھتی نہیں رکھتی گالی؟ ہاں بھائی, رکھتی ہے اثر. تو گالی تو بول ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ کلام الہی بھی بول تو ہے, اور گالی بھی الف با سے بنی ہوئی ہے. اس کی گالی کے لفظ بھی الف با تا سا سے بنے ہوئے ہیں, اور قرآن بھی سارا الف با تا سا سے بنا ہوا ہے. بولوں کا اثر ہوتا ہے, زندگیوں پہ اثر ہے, بولوں کا اثر ہے. قرآن بول ہیں, پاکیزہ, مقدس, مطہر, عرشی بول ہیں, ان کا اثر ہے. زندگی طرح سفر نہ کریں, یہ قدم قدم بلائیں, یہ قدم قدم بلائیں. ہر طرف بلائیں ہی بلائیں ہیں, ہر طرف چوٹے ہی چوٹے ہیں. تنہا سفر نہ کریں, کسی کو ساتھ لے کے سفر کریں. اور رب سے بڑا کوئی کفیل نہیں, رب سے بڑا کوئی وکیل نہیں, رب سے بڑا کوئی حفیظ نہیں, رب سے بڑا کوئی حافظ نہیں, اور رب سے بڑا کوئی جبار نہیں, اور رب سے بڑا کوئی طاقتور ملیک اور مقتدر نہیں. اللہم انک انت ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. رب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. مسنون دعاؤں کے ذریعے
इन अमाल के जरिए अपनी जिंदगी के मसाइल के हल में रब का साथ लेके चलें। सबका साथ लिया, कुछ ना बना। सबका साथ लिया, कुछ ना बना। रब का साथ लिया, सब कुछ बन गया। जेलों में कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है, जेलों में तस्बीह ज्यादा पढ़ी जाती है, जेलों में तहज्जुद ज्यादा पढ़ी जाती है। पूछ लीजिएगा, जेलों में नफल ज्यादा पढ़े जाते हैं, जेलों में जारियां और घंटों घंटों का रोना और आंसू ज्यादा बहे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि सारे असबाब मुनक़ते हो जाते हैं। वकील नाकाम, अपील नाकाम, तरतीब नाकाम, और बंदा पहुंचता है जेल में, चाहे झूठा जुर्म है या सच्चा जुर्म है, पहुंच जाता है। अब वहां जाके कहता है कि मौला तू साथ आएगा तो काम बन जाएगा। और ये रोना उसी को साथ लेने का अंदाज, तस्बीह उसी को साथ लेने का अंदाज, जिक्र दुआ उसी को साथ लेने का अंदाज, उसी को साथ लेने का अंदाज। जेल की मस्जिदें भरी हुई, अस्पताल की मस्जिदें भरी हुई, कचहरियों की मस्जिदें भरी हुई। कर लो तजर्बा। वजह वो लोग दुखी, वो लोग जिनको वसाइल हैं लेकिन मसाइल ज्यादा हैं, या वसाइल ही नहीं है। ये वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बड़ी दुनिया फिर के आए, मौला थारे थक हार के आए, अब तेरे दर पे आए। मेरी दरखास्त यह है, ये जिंदगी का सफर तन्हा ना करें। तन्हा सफर में लुटे जाते हैं, तन्हा सफर में नुकसान होता है। इस जिंदगी के सफर को हथियारों के साथ करें और रहबर के साथ, गाइड के साथ करें। और मेरे सबसे बड़ा रहबर जो है ना, मेरा रब है। या दलील अल मुतहय्यरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन। मौला हैरान हो, इधर जाऊं या इधर जाऊं, कौन सा रास्ता ऐसा है जो मुझे मंजिल पे, कौन सा रास्ता ऐसा है जो मेरे मकसद पे, और कौन सा रास्ता ऐसा है जो मेरी मुराद पे मुझे पहुंचा दे। वो मेरी दुनिया की मुराद हो या आखिरत की मुराद हो। या दलील अल मुतहय्यरीन, मौला हैरान हो। मुझे गम ने, मुझे हवादे से जमाना ने, मुझे जिंदगी की मुश्किलात ने परेशान कर दिया। मेरा दिमाग और मेरा दिल किसी काम का नहीं रहा। जमाने के फितनों ने, बातिल के हमलों ने, और अंदर की खलफशारों ने और साजिशों ने मौला मुझे खोखला कर दिया। अब मेरा मौला, मैं मुतहय्यर हूं, हैरान हूं। मेरी आंखें फटी हुई, मेरा मुंह खुला हुआ, मेरा वजूद बिखरा हुआ, और मैं इधर खड़ा हूं परदेशी बन के एक चौराहे पे। मौला कोई रास्ता बता दे, इधर जाऊं इधर जाऊं। कोई कहता है इधर जा, कोई कहता है इधर जा, कोई कहता है इधर एक रास्ता मिलेगा, वहां गया तो शिर्क मिला। कोई कहता है इधर जा, इधर एक रास्ता मिला, वहां मिल गया तो बिदअत मिली। कोई कहता है इधर जा, वहां रास्ता गया तो अंधेरा मिला, सिर्फ दौलत की तमन्ना मिली, पैसे ले आओ तो काम बनेगा। कोई कहता है इधर जा, वहां गया तो खतरा हुआ कहीं इज्जतें ना चली जाएं। कोई कहता है इधर जा, और वहां गया तो असबाब दुनिया मिला, और उसमें भी कुछ ना मिला। बोला मैं कहां जाऊं, सारी दुनिया फिर के आए हूं, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजजूब, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। मैं सारी दुनिया फिर के आया हूं, अब खड़ा हूं चौक पे, और हालत मेरी ऐसी है कि माल भी गया, जान भी गई, रूहानियत भी गई, इज्जत भी गई, सब कुछ गया, और मैं लुटा पुटा एक बंदा हूं, और मेरा नाम है या अल्लाह मुतहय्यर, और तू है दलील। दलील कहते हैं आम। हाँ भाई क्या बात है, यहां क्यों खड़े हो? उन्हें का रास्ता भूला हुआ था, आ मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा, बड़ी दिल ही में जान आई, और मंजिल पे मंजिल। हम मीना में भूले हुए थे, मीना में हज में अल्लाह जानबूझ के भुलवाता है। फिर मेरी खातिर फिर मीना में भूले हुए, काफिला साथ, खवातीन भी साथ, मर्द भी। अब मोबाइल काम न करे, नेटवर्क खत्म, लाखों लोग एक वक्त में मोबाइल कर रहे हैं। एक बंदे का मोबाइल मिल गया, वो एक साहब थे, मंजूर उसका नाम था, जूरा। वो कहीं दूर था, उन्हें क्या मैं पहुंचा, वहां पहुंचा,
बस उसने कहा ना, मैं वहां पहुंचा, सबकी जान में जान आई। कुछ के पास किन्नू थे, वो छील के खाने लगे, कुछ के पास जूस का डब्बा था, मैं देख रहा था सब कुछ। इससे पहले चीजें थी, होश नहीं था। ये जो होश ना होना है ना, ये कहते हैं मुतहय्यरीन, मौला होश उड़ गए हैं। किन्नू खाने लगे, कोई बिस्किट थी, एक अम्मा थी उसकी गठड़ी। मैं आ रहा था, वो जो है अपना इससे अराफात से मुजल्फा पैदल, को 5-6 घंटे का सफर है, सच हो जाए तो ज्यादा भी हो जाता है। मैं आ रहा था तो अम्मा की गठड़ी थी, बूढ़ी बिछड़ गई कहीं से। उसने कहीं से लस्सी पैक मिली तो वो भी ले ली, किन्नू मिला, सेब मिला, चीजें मिली, बंद पैकेट मिला, ले लिया। एक बंदे ने लिया, बूढ़ी अम्मा है, उसने लिया ना कि अम्मा इसमें पत्थर है, मैं नहीं उठा सकता। अब अम्मा से कहो, अम्मा कुछ चीजें निकाल दे, तुझे हर कदम पे हर जगह मिल जाएगी। और बुढ़ापे की किनातें और बुढ़ापे का हिर्स कहां जाए। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, उसने कहा मैं आ रहा हूं। सबने अपनी गठड़ियां खोली, बैग खोले, कोई जूस पी रहा, कोई किन्नू खा रहा। और उनके चेहरे पे एक इत्मीनान है कि दलील अभी आएगा। दलील अरबी में कहते हैं किसको है? किसको? रहबर को। दलील कहते हैं रहबर को। या दलील अल मुतहय्यरीन, या दलील अल मुतहय्यरीन। दलील कहते हैं रहबर को। अच्छा, थोड़ी देर ही उसने हाथ में झंडा उठाया हुआ ताकि सबको लेके चले। कहते वो आ गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई मंजूर, क्या हाल है, खैरियत है? उन्हें आओ, कोई मसला नहीं, रह मैं रास्ता जानता हूं। अब सारे थके, पांव में छाले, बाज के यहाँ रानों के दरमियान सब रगड़ा गया। और एहराम कहां, और चादर कहां, और बैग कहां, और मई कहां, और जवान कहां, और बंदा कहां। थके हारे थे, लेकिन उस वक्त थकान भी खत्म, एक नई जान पड़ गई कि दलील मिल गया, रहबर मिल गया। एक जान पड़ गई कि एक रहबर मिल गया। अल्लाह की कसम, तस्बीह खाने ने आपको जिंदगी कहकर रहबर दिया है। और वो कौन दिया? और रब दिया, अल्लाह दिया। मैं कौन होता हूं? मैं कल कह रहा था अपने साथी से, मियां साहब से, मैं क्या, मैं तो हूं कंडक्टर। वो कंडक्टर होता है ना, उसकी बड़ी टोर होती है, जो ट्रकों वाले होटल पे बस जाके खड़ी करता है ना, उसकी शान होती है। हाँ, हमारे क्या होता है शान उसकी? खाना फ्री होटल पे, चाय लाजवाब, खाना लाजवाब। भाई अब कर, बस कर, इसको कहो वो पिलर के साथ बैठा है, एक तो ले ली, अब इस मोबाइल ले लो जरा इससे, वो बैठा है, खड़ा हो जा, अब तो बस कर, क्यों मेरे मजमून डिस्टर्ब कर रहा है? रात भी एक बंदे ने डिस्टर्ब किया मुझे, तो अब बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ तो खौफे खुदा करो अल्लाह वालो। क्यों परेशान करते हो? मुझे तस्वीरों का शौक होता तो पता नहीं मैं क्या बताऊं आपको। मैंने जिंदगी में पहली दफा इंटरव्यू दिया है, आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, वो भी किसी के इसरार पे। कोई हिकमतें बसीरतें थीं कि मेरे नाम पे हकीम तारिक 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर बन चुके हैं। और नेट पे अभी भी एक साहब के खिलाफ FIA ने पर्चा दिया है, हकीम तारिक के नाम में माल भी, औरतें भी, और पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। लोग तो नहीं मजाक पूछते ना कि हकीम तारिक कौन है? हकीम तारिक की तस्वीर ही नहीं कहीं। सच बताएं, हकीम तारिक को पहली दफा किसने देखा? हाँ जी, इससे पहले वो हकीम तारिक से पूछ रहे होते थे, मुझे भी पूछते हैं रास्ते में, वो जी वो तस्बीह खाना है यहाँ हकीम साहब। मैंने हाँ, यूं सीधा जाओ।
ये 2 दिन है, मुझे कुछ बात करने दो, मैं आपकी मिन्नत करता हूं। मुझे तो शौक होना चाहिए कि इधर से लाइटें लगें, मेरी तस्वीरें मेरे व्यू लें। मेरी कोशिश है कि बात तसल्ली से हो। मैंने अपनी तस्वीरें डाली हैं, मेरा एक वीडियो दर्ज है, और इसलिए है सारा कि मेरे नाम पे बहुत कुछ हो चुका। मजीद मेरे साथी कहते हैं कि आपके वीडियो 10 डालें, अभी लोगों को शक्ल का पता नहीं है, लोग धोखा। एक बंदे ने एक शहर में मेरे नाम पे विजिट किया, इश्तिहार बांटे, अबकरी वाले हजरत हकीम साहब आ गए, मखलूक जमा होगी, माल लेना चल गया। चल, क्या कहानियां सुनाऊं आपको अंदर की। कितने नाम पे फेक जो है वो पेज बने हुए हैं अबकरी के नाम पे। क्या बात कर रहा था? हाँ, उसकी टोरी और होती है, खाना खिलाया जाता है, उसको चाय पिलाई जाती है। हर ड्राइवर दायमी कब्ज का मरीज होगा और गैस और तबखीर का मरीज होगा, और उसकी वजह ये चीज होती, कोई किस्मत वाला हो। और उस बस की बड़ी होती है, बस आती है, क्योंकि वो सारा निकालना होता है सवारियों से, ड्राइवर तो फ्री होता है। तो मैं सोचने लगा, मैं तो हूं कंडक्टर, अल्लाह पाक जिसके पास जाऊंगा, एक तवक्को है, ख्याल है, ख्याली पुलाव मुझे पकाने का हक तो दे दो। और ये ख्याली पुलाव नहीं है, उसकी शान से तवक्को है, और उसकी शान से तवक्को रखने वाला पाता है। मेरे बंदे, मेरे बारे में ऐसा ख्याल किया था तूने, मैं तेरे गुमान के बकदर अच्छा फैसला कर देता हूं। हत्ता कि यहां तक सुन लो कि अगर एक बंदे के बारे में हदीस से आता है, मफहूम है, मैयत के बारे में कुछ लोग कहते अच्छा था, मेरा अल्लाह कहता है मेरी लिस्ट में वो नहीं था जो लोगों ने कहा, अब अगर लोगों ने कह दिया तो मैंने भी अच्छों में लिस्ट दिया। चल, करीम तो ऐसा है। तो अल्लाह पाक फरमाएगा लोगों को मेरे पास भेजता था, मैं कहूंगा या अल्लाह मेरे पास तूने लोगों को भेजा था, मेरा दर था खाली, तेरा दर था भरा हुआ, तो फिर मैंने तेरे दर भेज दिया, तेरे बंदे जाने तू जान, और तूने उनको रंगा हुआ नवाजा हुआ भेज दिया। अपनी जिंदगी में आज के बाद सफर तन्हा नहीं करना, खतरा है, बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। एक बंदा जंगल में कर रहा था सफर, दिलचस्प वाकया अचानक याद आया। सफर करते हुए उसकी आंख खुली, दरख्त के नीचे रात गुजारी उसने, आगे सफर करना था, आंख खोली, 2 जिन आए, एक कहने लगे इसको छेड़े, कोई टांग बाजू तोड़ दें, कोई चीज इस तरह करें, छेड़े। कल कर, अल्लाह का बंदा सोया हुआ है। दूसरा कोई शरीफ था, रहम दिल था, अल्लाह का बंदा सोया हुआ है, क्यों था? इसकी आंख खुली है, दोनों की बातें सुन रहा। वो कहता नहीं मैं इसको छेड़ता हूं, तंग करता हूं, मजा आएगा, एंजॉय करते हैं हज्जाज बिन यूसुफ की तरह। हज्जाज बिन यूसुफ से पूछा बंदा कत्ल करते हैं, मजा कब आता है? कह रहे एकदम तलवार से उठा दो, मजा नहीं आता, पहले एक आंख निकालूं, फिर दूसरी आंख निकालूं, फिर एक आंख काटूं, फिर दूसरा कान काटूं, फिर एक होंठ काटूं, फिर दूसरा, फिर नाक काटूं, फिर उंगलियां काटूं, फिर हाथ काटूं, फिर कोहनी काटूं, फिर बाजू, सिसका सिसका के मार के हज्जाज कहने लगा जालिम मुझे तब एक पल में बंदा मार दूं कि बंद मजा आया। हाँ, सांप को डसते में मजा नहीं आता, बिच्छू को डसते में मजा नहीं आता। इसलिए कुरान कहता है बाज इंसान ऐसे होते हैं, उलाइक कल अनाम, वो जानवर होते हैं, बकरी भी तो जानवर है, फायदा देती है। अगला लफ्ज है बल हुम अजल, उनसे भी बदतर होते हैं, उनको नुकसान देने में फायदा नहीं होता, लेकिन अंदर एक तस्कीन मिलती है कि मैंने इसको नुकसान दिया। और मैं वो इंसान नुमा कुत्ते होते हैं, इंसान नुमा बंदर होते हैं, इंसान नुमा खिंजीर होते हैं। इनसे बचने के लिए भी ये निजाम है अनदेखी ताकतों का। तो क्या कह रहा था?
उसने कहा, एक दूसरे से कह रहे थे इसको तकलीफ दे। अच्छा, इसको क्या सूझी? इसने कुरान की आयत है ना, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा, ये अनमोल खजाने में है, ये दिल ही दिल में पढ़ना शुरू कर दी। इसको इसकी फजीलत का पता था कि इसमें बड़ी ताकत है, हिफाजत है, रिस्क के लिए भी, जिंदगी के लिए भी, सेहत के लिए भी, मसाइल के लिए भी इसके अंदर बड़ी ताकत और तासीर है। इसको ये पता चला था, दिल ही दिल में इसने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी खत्म नहीं किया, उसने कहा तुझे नामुराद मैंने कहा था ना इसको ना छेड़, अब तेरी और मेरी सुबह तक ड्यूटी लग गई इसकी हिफाजत करें। हाँ, अब तेरी और मेरी ड्यूटी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करें। तूने पढ़ा क्यों था? अच्छे खासे जा रहे थे काम में, अब वो सुबह तक उसकी हिफाजत की ड्यूटी लगी है। सुबह ये बंदा गया, चला गया, और इसकी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। मेरी हिफाजत, तेरी हिफाजत, मेरे घरों की, नस्लों की, आपके कारोबार की, आपकी बिजनेस की, आपकी सनत, तिजारत, नौकरी की, आपके घर और नस्लों की हिफाजत का निजाम, गैबी निजाम को साथ लेके चलना है, और वह गैबी निजाम ही गैबी ताकतों से निपटेगा। गैबी निजाम ही, इसको फिर दोहराएं, गैबी निजाम ही गैबी ताकतों से निपटेगा। क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं, मैं देखूं तो कैसे उनको मुक्का मारूं, उनको बांधूं कि तुमने मेरा कितना नुकसान किया, अदालत में जाऊं, कोर्ट में, मैं देख ही नहीं सकता हूं। तो उसके लिए गैबी निजाम साथ लो, और वो गैबी निजाम कुरान और सुन्नत है, कुरान और हदीस है, मेरे मदीने वाले की अदाएं, वफाएं, शिफाएं, ये अमाल, ये तदबीरें, ये कुरानी दुआएं, ये हदीस की दुआएं, ये सारा गैबी निजाम है। ये सूरत अल काफिरून, ये दम वाला पानी, ये अमाल, ये जिंदगी का गैबी निजाम है। इसको साथ लेके चलेंगे, जिंदगी में कदम कदम पे रब रुकावटें हटाता जाएगा, बंदिशें तोड़ता जाएगा, राहतें देता जाएगा, मुश्किलें कटती जाएंगी, और जिंदगी बड़ी शानदार होगी। मौत को इस्तकबाल करेगा, मौत से घबराएगा नहीं। क्यों? ये छोटे से गैबी निजाम को मैंने पाया तो यहां निजाम बन गया। छोटी सी गैबी निजाम से मुराद पूरे कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। सूरत कौसर को पाया तो ये बन गया, सूरत बकरा को पढ़ा तो ये बन गया। और वो रब जिसके पास सारी कायनात के खजाने हैं, जब उसके पास चला जाऊंगा तो क्या बनेगा? इसलिए मौत का इस्तकबाल करता है। क्यों? ये गैबी निजाम से फायदे पा चुका होता है, अब उस गैबी निजाम में जाना चाहता है, इसलिए मौत से घबराता नहीं है, मौत से घबराता नहीं। ये जिंदगी का निजाम पाना चाहते हैं, ये सारी उम्र दुख, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, मंगते भिखारी, खुदा न खास्ता, ये जिंदगी पाना चाहते हैं? आप बताएं मुझे। हैं? ऐसा करते हैं, एयर कंडीशन हो, ठंडा हो, हर वक्त सोते रहें, दर्स भी ना हो, तस्बीह भी ना हो, बस आखिरी अय्याम अशरा यहां गुजार, सो, उठ, उसके बाद उठ के महफिलें लगा, उसके बाद तू उधर और मैं उधर, ये इंतजाम करें कोई? हैं? पसीना बड़ा आ गया आपको, थक गए और निढाल हो गए, तकलीफ में आ गए, दी चाहते हैं बस निकल यहां से, निकल यहां, निकल। हाँ, मेरे साथ एक पठान आया, वो दवाई लेने के लिए। मैंने कहा भाई आप के बाद आपने नस्वार नहीं खाना। मुझे कहते हकीम साहब कैसी बात करता है, हम ट्रक ड्राइवर है। एकदम हमारा साथ मेजर साहब बैठा था, उसने कहा नस्वार नहीं खाना, हम स्टीयरिंग छोड़ दिया, जिंदगी नहीं है यारा, जिंदगी नहीं, हमने स्टीयरिंग छोड़ दिया। उसने स्टीयरिंग पकड़, खाला नुकसान करना, मुझे तो ना मार, स्टीयरिंग पकड़ यारा, जिंदगी नहीं है। और कहने लगा तुम, एक दफा बंदा मुझे कहने लगा यार तुम लोगों को क्या तकलीफ होता है, छोटी सी चीज तो मुंह में देता है, तुम इतना बड़ा पान रखता है, उसको फेंकता रहता है, उसका तकलीफ नहीं, हमारा नस्वार का पीछे पड़ा हुआ है, जालिमान।
دا خبر دے. اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. میں دانستہ بعض اوقات اسی نیت سے کوئی پھول جڑی لے آتا ہوں، اسی نیت سے کہ اللہ کے مہمانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے. اور اللہ خوش ہو گیا تو کام تو بن گیا. تو جب اللہ خوش ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، جا لے جا سب کچھ. تو غیبی نظام کو ساتھ لے کے اللہ کی مدد، اور پھر زندگی کا مزہ دیکھیں، پھر زندگی کے برکتیں دیکھیں. فصلوں کے مزے آ جاتے ہیں. جن کو میں نے اعمال بتائے فصلوں کے، اور ان کی فصلیں لہلہاتی اور خرچہ کم اور آمدنی زیادہ، وہ کہتے ہیں بس. ایک خاندان ہے یہاں تسبیح خانے میں، بیوی بچے سارے یہیں پڑے ہیں. اس دن بیٹھے ہوئے دسترخوان سے میں کہا تمہیں گھر روٹی نہیں ملتی؟ سارے یہیں آ کے پڑے ہوئے ہیں. اب جی میں ہے کہ در کر کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. تو ٹر جوئی میں کو نہیں ٹھاندی، میرے در تو آتے خالی ون. ہن کچھ نہیں پیاتے کو کیا دیواں، یہ ساہی نہیں یار سنبھالی ون. میں کو ہال نہ رہ جو روندا گے، ذری کھلتی شکل دکھا لی ون. مت راہ چ پوی رات سجن، میرے خون دا دیوا بالی ون. ہو مت راہ چ پوی رات سجن، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، خون دیتا ہوں اسی کا چراغ جلائے جانا. مت راہ چ پوی رات سجن، اے سجن تجھے اگر رات رہوں میں پڑ جائے، پھر یہ میرا خون ہے، اس سے چراغ جلا لینا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تسبیح خانے کی قدر کریں. میں بھی آپ بھی، میری قدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آپ جیسا سیکھنے والا ہوں. تسبیح خانے کی قدر کریں، یہاں کے رہنے کی قدر کریں. اور چند ڈوبتی ساتیں ہیں، چند ڈوبتی ساتیں ہیں، ان ساتوں کو سینے سے لگائیں. رزق، عزت، برکت، صحت، روحانیت، مدینے والے کا عشق اور تعلق اسی میں رکھا ہے. اب بیٹھ کے ذکر کریں گے، پر ایسے جذبے سے کریں گے. دیکھو یہ بات سنو، میری پہلے بات سن لیں. یہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، یہ لا جو ہے نا اندر والا، لا الہ، یہ لا الہ، یہ اندر کا جو لا ہے نا، ساری مخلوق اللہ کے علاوہ سب لا ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق. یہ نکل جائے اندر سے، الا اللہ آ جائے. اس کو جذبے سے، پورے شوق سے، پوری دل جمی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تھکے تو نہیں آج؟ خاص طور پہ آج ہیں؟ بالکل نہیں تھکے؟ سچی بات ہے. اللہ آپ کو دنیا آخرت میں کبھی نہ تھکائے. کبھی نہ تھکائے. نہ اولاد کے سلسلے میں تھکائے، نہ نسلوں کے سلسلے میں تھکائے، نہ کسی آزمائش سے تھکائے. رب بن تھکا اپنے پاس بلا لے. افضل الذکر لا الہ
الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
رسول الله. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. آمين 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 بحرمة سيد الأبرار والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين.